Hello everyone. In the previous lecture, we were discussing about environment and related aspect. Today we will continue the same topic and we will start the topic with the topic excessive exploitation of natural resources. It is also known as over-exploitation or over-harvesting. What is over-exploitation or excessive exploitation of natural resources? It refers to harvesting a renewable resource to the point of diminishing returns. The term applies to natural resources such as wild medicinal plants, grazing pastures, game animals, fish, stocks, forests, and water aquifers, as it is clear from the name that it is excessive exploitation of natural resources. हम नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, मतलब उसके रीजनरेशन की रेट से भी ज़्यादा हम उसको यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ नोन एज excessive exploitation of natural resources. Next, what are the causes of excessive exploitation of natural resources? The very first, in order to achieve economic growth, man needs natural capital along with physical capital. We are very much aware about what is physical capital. Physical capital refers to the stock of machinery, the stock of plants, the stock of equipments, etc. And then financial capital. We have already studied that financial capital refers to the paper claims. Then the third one, this is human capital. This is the stock of skilled and expertise people. Along with these three types of capital, for economic growth, man needs natural capital. As a result of increase in production, there is depreciation of both physical capital and natural capital. जब भी हम production activity को perform करते हैं तो उसमें depreciation होता है. Machinery depreciate होती है because of normal wear and tear, because of accidental damage. Machine ख़राब हो जाती है या धीरे धीरे घिसावट आनी शुरू हो जाती है. बिल्कुल इसी तरह से नेचुरल कैपिटल भी डेप्रिशिएट होती है, नेचुरल कैपिटल भी डिग्रेड होता है. नेचुरल कैपिटल हेयर रेफर्स टू द नेचुरल रिसोर्सेज. द फिजिकल कैपिटल कैन बी रिप्लेस्ड. मशीनरी ख़राब हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है, एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, उसको रिप्लेस कर लिया जाएगा. बट द डेप्रिशिएटेड और डिग्रेडेड नेचुरल कैपिटल इज़ ऑफनली इग्नोर्ड और पुअरली मैनेज्ड. उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज पर एडवर्स इफ़ेक्ट आ रहा है, लेकिन उसको या तो टोटली इग्नोर कर दिया जाता है या फिर उसको पुअरली मैनेज किया जाता है, मतलब उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाता. दीज आर द कॉजेज ऑफ एक्सेसिव exploitation of natural resources. Then industrialization and deforestation. बच्चे, industrialization refers to a process of fast growth of industries. As we have already studied that industrialization is the backbone, is the foundation stone of the development of a nation. That's why industrialization is a need of hour. इंडिया में रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी कम रहा था. हम पढ़कर आए हैं कि इंडिया में आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर द टर्शियरी सेक्टर हैज़ स्टार्टेड डेवलपिंग इंस्टेड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर, द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्टर और द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ नोन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन. लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जाता है, रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसका सीधा इम्पैक्ट क्या आता है? डिफॉरेस्टेशन. Deforestation, everybody knows about the term. This is the reckless cutting of trees. Oftenly, the process of industrialization is linked with deforestation. Trees are cut to meet the growing demand for wood and other forest products by the industries. Industrialization leads to urbanization. Urbanization means the settlement of people in urban areas. एंड अर्बनाइजेशन लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. आपने देखा कि लोग घर बनाते हैं और घर बनाने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है. अगर हम आज के टाइम में देखें, एक बड़ा सिंपल सी बात है, हम किसी के घर की प्रॉस्पेरिटी या उसकी ब्यूटी को उस घर में हुए वुड वर्क से देखते हैं. सो जितना ज़्यादा वुड वर्क हम लेंगे उतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा. सो industrialization leads to urbanization and urbanization leads to
डिफॉरेस्टेशन. लोग गांवों से शहरों में आते हैं. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन. उनके लिए, उनको सेटल करने के लिए घर बनाए जाएंगे. उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वुड की ज़रूरत पड़ेगी एंड इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. Multi-purpose river projects are another factors contributing to deforestation. Multi-purpose river projects, that is the dams, construction of dams. You have already studied in 10th standard that dams are the gateway of development. Means the development of a country depends on the construction of dams. आपने पढ़ा इसके बारे में, बहुत सारे डैम्स आपने पढ़े. सरदार सरोवर डैम के बारे में पढ़ा, भाखड़ा नांगल डैम के बारे में पढ़ा. आपने बहुत सारे डैम्स के बारे में पढ़ा और इनकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस भी पढ़ा. लेकिन जब ये डैम्स बनाए जाते हैं तो इसका एनवायरनमेंट पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. पहली बात, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है. रास्ते बनाने के लिए जिस जगह से हमें लेना, रास्ते में आने वाले सारे के सारे फॉरेस्ट गैप को हमें कट करना पड़ेगा. जो रिवर्स होती हैं उसका नेचुरल फ्लो डाइवर्ट किया जाता है. इससे एक्वेटिक एनिमल्स पर भी काफ़ी ज़्यादा, एक्वेटिक लाइफ पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. सो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स आर अनदर फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स in deforestation. In India, explosive population size along with the process of industrialization has contributed to the deforestation. Consequently, tree felling has happened at the rapid pace. और अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो डिफॉरेस्टेशन के लिए दो फैक्टर्स साइमल्टेनियसली रिस्पॉन्सिबल हैं. वन इज़ द explosive population size and second is the process of industrialization. The next topic, this is related with social forestry. Social forestry का मतलब होता है एक लैंड पर, पीस ऑफ लैंड पर पेड़ों को उगाया जाए, पेड़ों की खेती की जाए और उन पेड़ों को वुड की डिमांड को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाए. सो व्हाट आर द एम्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री? द वेरी फर्स्ट, रीस्टोरिंग और रिहेबिलिटेटिंग द फॉरेस्ट्री. बचाएं उसको हम, जो फॉरेस्ट कैप है उसको हम रिहेबिटेट करें, रिस्टोर करें. सेकेंडली, स्प्लिटिंग द वेजिटेशन कवर ऑन लैंड, उस पर वनस्पति मतलब वेजिटेशन बनी रहे. देन encouraging commercial production of raw material for the paper industry as well as match industry. As you have already aware about the fact that paper industry as well as match industry are the prominent industries that need wood as their raw material. Then encouraging the growth of fast growing trees for meeting the emerging requirements of timber as well as firewood. Means पेड़ों को उगाया ही किसके लिए जाता है? ताकि उसको काटा जा सके और वुड की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके, नीड को पूरा किया जा सके. देन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू एफोरेस्टेशन. पौधों को लगाने में, पेड़ों को लगाने में भी काम की ज़रूरत, काम जनरेट होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे. बच्चे दो टर्म्स आप पढ़ रहे हो, वन इज़ द डिफॉरेस्टेशन एंड सेकेंड इज़ द एफोरेस्टेशन. देन स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया. It is very very important topic. India is the habitat of nearly 17% of world's population, occupying just 2.5% of world's geographical area, having approximately 22% of population below poverty line. Explosive population and massive poverty have led to the following environment issues. हम पढ़कर आए हैं कि एक तो इंडिया में पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा है, ऊपर से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, इसलिए एनवायरनमेंट क्राइसिस इंडिया में तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं. द वेरी फर्स्ट वन, नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग एक्सेसिवली एक्सप्लॉइटिंग एक्सीडिंग द रेट ऑफ इट्स रीजनरेशन. बड़ी तेज़ी से इसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और जो रेट ऑफ रीजनरेशन है उससे कहीं ज़्यादा रेट से हम इसको यूज़ कर रहे हैं. सेकेंडली, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वेस्ट आर बीइंग जनरेटेड beyond the absorption capacity of the environment. You have already studied that absorption capacity of environment refers to the capacity of environment to dissimulate the waste. जो waste होता है उसको cope up करना, automatic means naturally उसको cover कर लेना, उसको absorb कर लेना, इसको कहते हैं absorption capacity. लेकिन इतना ज़्यादा waste generate हो रहा है कि उसको environment absorb नहीं कर पा रहा. Then air pollution, water pollution and noise pollution are increasing up to the alarming limits. बड़ी तेज़ी से pollution बढ़ता जा रहा है. Then
द डायक्मी ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया। डायक्मी का मतलब होता है एक पैराडॉक्सिकल फैक्ट, मतलब एक दुविधा की स्थिति है हमारे सामने। द टू एस्पेक्ट्स, डायक्मी को हम टू एस्पेक्ट्स भी कह सकते हैं। द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इन इंडिया इज इंडिकेटिंग अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल in the country. Environmental degradation is occurring and expanding due to staggering poverty as well as rapid growth of production activity. हमारे कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो डिफॉरेस्टेशन है या नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन है, वो एक कंपल्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि गरीब लोगों को फायरवुड पर डिपेंड करना पड़ेगा। या आपने पढ़ा है कि जो पुअर पीपल होते हैं ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और प्राइमरी एक्टिविटीज़ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती हैं। इस वजह से क्योंकि इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट reason है for the overutilization of resources. So poverty is the principal cause of environmental degradation, particularly in rural areas, because tree felling becomes an economic compulsion for the millions of poor and rural areas. On the other hand, expanding production activities is the principal cause of environmental degradation in urban areas. इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हम बढ़ा रहे हैं अपने अर्बन एरियाज़ में। रिजल्ट क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड स्मोक is causing air pollution and water pollution. The expansion of vehicular traffic is also generating noise pollution. In this way, contributing to the global warming as well as ozone depletion. So rural area में environment crisis का main reason क्या है? Poverty. और urban areas में क्या है? Expanding production activities. You should keep in mind about these facts. Then, two things that you should keep in your mind. India's rapid economic development has made us aware of two realities. The very first, economic development has lifted millions out from poverty. जितना ज़्यादा हमारे कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, उतना ज़्यादा पॉवर्टी एलिविएट हो रहा है। मतलब people, the proportion of people living below poverty line is continuously decreasing. On the other hand, economic development has been accompanied by accelerating depletion of natural resources and rapid deterioration in environment quality. बड़ी तेज़ी से environment degrade भी होता जा रहा है. Then, two aspects of excessive use of natural resources. The very first is overuse of resources and the second is misuse of resources. I think it is very much clear. Overuse का मतलब होता है ज़्यादा यूज़ करना, जितना चाहिए उससे ज़्यादा यूज़ करना। इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? The very first one, drying up of rivers. The increasing irrigation and construction of flood storage reservoirs are resulting in the drying up of rivers. अभी इन दिनों में आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सभी जगह पर फ्लड आया हुआ है, लेकिन हम बाद में देखेंगे कि पानी कम हो गया या रिवर्स में पानी नहीं है। ये एक फैक्ट है। ग्राउंड वाटर लेवल बड़ी तेज़ी से नीचे होता जा रहा है। Then excessive deforestation. The growing population and their ever-growing demand are resulting in large-scale deforestation. This leads to soil erosion, making the soil infertile. So, overuse of environmental resources का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा resources को use करना. Then misuse का मतलब होता है wastage of resources. Use of rivers to discharge the waste. हम rivers को use कर रहे हैं waste को डिस्चार्ज करने में। जब हम यहाँ से चंडीगढ़ जाते हैं तो रास्ते में एक रिवर आती है, रिवर नहीं है, एक ऐसे रिजर्वेयर सा है, वो इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है कि उसमें पानी का रंग, पानी तो उसमें होता ही नहीं है, उसमें ब्लैक कलर का एक वेस्ट होता है सारा, जिसके ऊपर वाइट कलर की बहुत ज़्यादा फोम होती है। पता नहीं कौन से इंडस्ट्री से उसमें से एफ्लुएंट को मिक्स किया जाता है, मतलब हाईली पोल्यूटेड। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. The misuse of water as a resource is responsible for its pollution and contamination. The factors responsible for water pollution are the discharge of domestic sewage, industrial waste, and thermal power plants into the rivers. Then, use of wood for cooking food. Wood is a non renewable source of energy. It is obtained from trees.
using wood instead of eco-friendly alternative fuels for cooking purposes brings about deforestation. अभी भी बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर घर में कुकिंग के लिए लकड़ियों को यूज़ किया जाता है. इससे एक तो नुकसान क्या है कि डिफॉरेस्टेशन होता है, दूसरा बहुत दूर दूर से लकड़ियाँ लाना पड़ता है, तीसरी बात इससे एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है क्योंकि धुआं निकलता है इससे, और खाना बनाना भी बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है. इसके लिए गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई थी. आई थिंक यू आर वेरी मच रिमेंबरिंग दैट योजना, दैट इज़ उज्ज्वला योजना. इसके बारे में मैंने आपको इसके बारे में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में मैंने पढ़ाया भी था. आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज़ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन एंड अवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बच्चे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट दैट वन हैज़ टू बियर टू obtain an opportunity, that is the value of a factor in its next best alternative use. अगर हम किसी एक अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहे हैं तो उसके बदले में हमको क्या कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नाउ opportunity cost is a cost that is foregone when we make a choice or a decision. If a piece of land is to be used for wheat production, then the production of say rice is to be sacrificed. आपने पढ़ा था कि अगर हम एक लैंड पर वीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम राइस को नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे. अगर हम राइस को भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट हमें वीट का छोड़ना पड़ेगा. The loss of rice production is the opportunity cost of producing wheat. In the similar way, the cost of negative environment is the opportunity cost of huge expenditure incurred on health and searching new alternatives. This is explained elaborately in the following paragraph. हम इंडस्ट्रियलाइजेशन ले रहे हैं, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं. इससे क्या हो रहा है, हेल्थ इश्यूज जनरेट होते जा रहे हैं. आपने देखा है बहुत सारी बीमारियां फैलती जा रही हैं दैट आर बेसिकली बेस्ड ऑन केमिकल्स. तो इससे क्या हो रहा है, लोगों को बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ रहा है एज हेल्थ एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट को बहुत सारी योजनाएं जैसे इंश्योरेंस या आयुष्मान योजना ये सब चलानी पड़ रही हैं. क्यों? क्योंकि हेल्थ इश्यूज बड़े ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. और ये क्या है, ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट वी आर पेइंग टू फॉर अवेलिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन और द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए हमें नेगेटिव एनवायरनमेंट की तरफ जाना पड़ रहा है, हेल्थ इश्यूज जनरेट हो रहे हैं और बहुत बड़ा हेल्थ एक्सपेंडिचर हमें इंकर करना पड़ रहा है. दिस इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नाउ इज़ इट अवॉइडेबल, क्या हम इससे बच सकते हैं? येस, डेफिनेटली वी कैन अवॉइड दिस. व्हेन द रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड एट अ मोर रैपिड पेस then its regeneration, then we say that the carrying capacity of the environment reduces. ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है. In such situation, environment fails to perform its function of sustaining life, thereby resulting in environmental crisis. In other words, environmental crises are an aggregate outcome of excessive exploitation of natural resources and excessive generation of waste. बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है. Environment crises are an aggregate outcome of excessive exploitation of natural resources. Therefore, there arises a need for exploration of new alternative eco-friendly resources to avoid environmental crisis. environmental crisis क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हमें इको फ्रेंडली रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा. मोरओवर, environmental crises lead to greater incidence of respiratory and waterborne disease, necessitating higher health expenditure and investment. The costs involved in searching new alternative resources together with the greater health expenditure constitute the opportunity cost of negative environment. एक तो हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, दूसरा नए अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को हमें ढूंढना पड़ रहा है. तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सच अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर वेरी हाई एंड रिक्वायर voluminous financial commitments by the government. Therefore, the opportunity cost of negative environment
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आर क्वाइट हाई, बहुत खर्च सरकार को करना पड़ रहा है। अभी इन दिनों में कोविड-19 आया, ये तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लोटेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि अभी तक ये कैसे आया है हमें इसका पता ही नहीं लग रहा। लेकिन इसके लिए रिसर्च वर्क पर या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में सरकार को बहुत, वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। ये क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गॉट इट बेटा? यहाँ पर हम इसको, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, लेकिन दिस इज़ नॉट एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि अभी तक हमें इसका रीज़न ही नहीं पता कि कोविड आया कैसे। देन सप्लाई एंड डिमांड रिवर्सल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब पहले क्या होता था, इन द इनिशियल स्टेजेस क्या होता था कि डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज was quite low as compared to the supply, means there were abundance of natural resources, बहुत ज़्यादा थे। ये है बिल्कुल हिस्टोरिकल पीरियड, मतलब जब डेवलपमेंट नहीं हुई थी। लेकिन अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के, उसको एक्सप्लोर करने के टेक्निक्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो उससे क्या हो रहा है, सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉन्टीन्यूसली, मीन्स डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग एंड इट इज़ मोर देन इट्स सप्लाई। दिस इज़ द रिवर्सल। पहले क्या होता था, सप्लाई ज़्यादा होती थी, अब क्या है, डिमांड ज़्यादा है। दिस इज सप्लाई एंड डिमांड रिवर्सल। From the very inception of civilization till the advent of industrialization, the rate of extraction of the natural resources was far behind the rate of their regeneration. मतलब बहुत पीछे था, वो रीजनरेट जल्दी हो जाते थे और हम उनको इतना एक्सट्रैक्ट नहीं करते थे। दैट इज़ इन अदर वर्ड्स द डिमांड फॉर रिसोर्सेज was short of the supply of the resources. The exploitation of nature by man was within the absorptive capacity of the environment, but in today's scenario, with population explosion and industrial revolution, then the demand for resources for both production and distribution has risen at a much more rapid rate. However, the rate of regeneration of these resources is relatively much lower than the rate of their extraction. अब क्या हो गया, हम एक्सट्रैक्शन ज़्यादा फास्टली कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू देयर नेचुरल रीजनरेशन। इन अदर वर्ड्स, द रेट ऑफ कंजम्पशन और द डिमांड फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज एक्सीड्स दैट ऑफ देयर सप्लाई। पहले क्या था, डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी। अब क्या है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। दिस इज़ बियॉन्ड द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट and has made environmental crisis more probable. This reversal in the demand and supply relationship is referred to as the supply-demand reversal of the environmental resources. This is again very very important. आपको इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है. This is supply and demand reversal. Very important topic. This is very very important. आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. Then what's about your homework? Dear students, you are to revise these concepts properly because these are very important. हम इन टॉपिक्स में से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करते हैं। जो आपके एवेलुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो हम इन्हीं टॉपिक्स में से एक्सपेक्ट करते हैं। सो आपने इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो डू रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। नेक्स्ट टेक्स्ट आपका जब भी होगा तो उसमें 2 चैप्टर्स आएंगे, एक आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का और एक आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हम टॉपिक कर रहे हैं। तो आप साथ साथ प्रिपेयर करिए, चैप्टर नंबर 11 एंड 12 को थॉरोली प्रिपेयर करिए। ओके बेटा, सो हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय योर डे प्रॉपरली एंड प्लीज़ बी सिंसियर अबाउट योर स्टडीज़। गुड बाय डियर स्टूडेंट्स।